السلام علیکم، اچھا لگے برا لگے کے ساتھ میں ہوں منیز جہانگیر۔ آج دہشت گردی کے افریق کا پولیو ورکرز پر خونی حملہ، کراچی میں 3 اور پولیو ورکرز شہید ہو گئے۔ پشاور کے بعد سندھ میں بھی پولیو مہم بند، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آج صبح کراچی کے علاقے قیوم آباد میں 2 خواتین سمیت 3 پولیو ورکرز کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا، جبکہ 2 خواتین پولیو ورکرز ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ بے گناہ افراد معصوم بچوں کو پولیو سے بچانے نکلے مگر اپنی جان نہ بچا سکے۔ اس واقعہ کے بعد کراچی سمیت سندھ بھر میں پولیو مہم بند کر دی گئی، جبکہ دوسری طرف پشاور، چترال اور ہری پور میں پولیو مہم سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پہلے سے ہی مؤخر ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنی رپورٹ میں دنیا بھر میں پشاور کو پولیو کا گڑھ قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2013 میں خیبر پختونخوا میں 91 میں سے 83 پولیو کیسز کی موروثی جڑ پشاور ہے، جبکہ افغانستان میں 13 میں سے 12 کیسز کی موروثی جڑ بھی پشاور ہے۔ پشاور میں پچھلے ماہ 3 پولیو ورکرز مار دیے گئے، جبکہ نومبر میں جنگجوؤں نے ان اساتذہ کو اغوا کر لیا جو پولیو مہم کی حمایت کر رہے تھے۔ حالیہ پولیو انسداد مہم کے دوران خیبر پختونخوا کے 7 ہائی رسک اضلاع میں 16,000 سے زائد والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2012 میں ملک بھر سے 74,000 والدین نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا تھا، جبکہ 2013 میں یہ تعداد تقریباً 2 گنا ہو کر 1,50,000 تک پہنچ چکی ہے۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آج پاک فوج نے بنوں اور راول پنڈی میں ہونے والی دہشت گردی کا پرزور جواب دیا ہے اور 60 سے زیادہ دہشت گرد مار دیے ہیں۔ داخلی سلامتی کی پالیسی کے خد و خال کیا ہیں؟ لائن آف کنٹرول پہ تجارت دوسری طرف بند ہو چکی ہے، ٹرک یرغمال اور کشمیری پریشان ہیں۔ ان سب پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب اور ایاز خان صاحب۔ ایاز خان صاحب، آپ نے دیکھ لیا کہ پولیو ورکرز کے ساتھ آج کراچی میں کیا ہوا ہے۔ دسمبر کے اندر بھی پولیو ورکرز مارے گئے ہیں، پشاور کے اندر نومبر میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، جو ٹیچرز جو ان کو سپورٹ پولیو مہم کو سپورٹ کر رہے تھے، تو حالات تو بہت خراب۔ یہ قوم کو اپاہج بنانے کی اور آئسولیشن میں لے جانے کی سازش ہے۔ لیکن مجھے امتیاز صاحب یہ بتائیے، آپ بلاول کو جانتے ہیں؟ سنا ہے وہ پیپلز پارٹی کے پیٹرن ہیں یا کیا چیئرپرسن ہیں؟ انہوں نے جو آج 7 منٹ کی ایک تقریر کی ہے، اس میں لگ رہا تھا کہ اس ملک کا پرائم منسٹر تقریر کر رہا ہے اور انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی ہے ان حالات میں۔ آپ کے پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے کہیں۔ وزیر اعظم گئے ہیں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، اور وزیر داخلہ بھی گئے بنوں، اور چیف آف آرمی اسٹاف بنوں گئے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں دونوں افواج، ہوائی فوج نے اور پاک فوج نے ایک بھرپور کارروائی کی ہے، جس میں ابھی خبر ہے کہ کافی لوگ وہاں مارے گئے ہیں، اور یہ کارروائی بھی لگتا ہے آگے جائے گی، اور یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا رد عمل آئے گا۔ اچھا ایاز صاحب، اس کے پر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جس طرح امتیاز صاحب نے کہا ہے، جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے، وہ ایک بہت خوفناک بات انہوں نے کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی آپ کے سیاستدان ہیں وہ جو معاملات کہیں اور ڈال رہے ہیں، وہ معاملہ ڈال رہے ہیں بیرونی قوتوں کے اوپر، کہ جی اس کے اندر بہت ملک لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت، جو میں کہہ رہا تھا نا، امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ وہ سی ایم ایچ گئے اور زخمیوں کی عیادت کی، یہ کام تو پھر ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست اصغر ندیم سید اس وقت ہسپتال میں پڑے ہیں، ان پہ فائرنگ ہوئی ہے لاہور میں۔ تو یہ تو روز کا، روز صبح اٹھتے ہیں تو ایک ہی کام ہوتا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے اس ملک میں۔ دو طرح کے امکانات تھے۔ ایک امکان یہ تھا کہ واقعات آپ کو ٹیک اوور کر لیں، جیسے طالبان پیدر پہ لوگوں کو مار رہے ہیں، کراچی سے شروع ہوئے ہے، بنوں سے اور پنڈی تک کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ جو کارروائی جو پولیو ورکرز کے خلاف ہے، یہ بھی تو انہوں نے شروع کی تھی فاٹا میں۔ ہر طرف اشارہ ان کی طرف جا رہا ہے اور خود مان رہے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا ہوا؟
फौज ने, आपको याद होगा जब पिछली बार कार्रवाई हुई थी शुमाली वजीरिस्तान में, फौज पे हमला हुआ था तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की थी। बिल्कुल। अब फिर ये जवाबी कार्रवाई की है। इसे कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, कि आप फौरी तौर पर एक आप पे कार्रवाई होती है, आप उसके रद्देमल में आप कार्रवाई करते क्या ये मसले का हल है? मैं समझता हूं कि हुकूमत को बहुत पहले ये पॉलिसी बना लेनी चाहिए थी सलामती की। अभी तक उस पर बहस चल रही है। कागजात पे हमारे पास एक मॉडल था जो पाकिस्तान के जो बड़े सिक्योरिटी तजियाकार हैं और बैनुल अक़वामी भी, सवात मॉडल, उनका ख्याल है कि सवात का मॉडल एक अच्छा मॉडल है। वैसे दुनिया में दो मॉडल बहुत आजकल रेफर हो रहे हैं। एक तो श्रीलंका का मॉडल है। श्रीलंका का मॉडल में एक फर्क ये था कि वो एक इलाके में महदूद थे, लेकिन पूरे मुल्क में भी वो सुसाइड बॉम्बिंग करते थे, बिल्कुल खुद का हमलावर करते थे। दूसरा मॉडल था अलजायर का, कि जहां पे हुकूमत ने ग्रुप बनाए, कमांडो ग्रुप्स बनाए, जिन्होंने जाके एक्सट्रीमिस्ट पे हमला किया। ये दो तरह के मॉडल हैं, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी हैं। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जैसे हुकूमती ज़राए या फौजी ज़राए बताते हैं कि बड़ा मरकज़ बन गया शुमाली वजीरिस्तान, लेकिन सवाल लोग पूछना चाहेंगे कि शुमाली वजीरिस्तान कैसे मरकज़ बन गया था, आखिर सब लोग वहाँ कैसे इकट्ठे हो गए? असल सवाल है। दूसरी बात है, आज जैसा कि सलामती काउंसिल की जो कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा अहम नुक्ता आया है, वो ये आया है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट की बात 2012 में अफगानिस्तान के आए थे डिफेंस मिनिस्टर, और ये बादशाह सदर दरदारी की मुलाकात जब हुई बरतानिया में करज़ई के साथ, उस वक्त तय हो गया था और बादशाह फिर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने आगे बढ़ाया। अब उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग में कि वज़ारत दाखिला पाकिस्तान की, वज़ारत दाखिला अफगानिस्तान की, ये मिलकर एक हिकमत अमली बनाए ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट तय ही करते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। कैसा बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होगी? इतना लंबा बॉर्डर है, इतना तवील बॉर्डर है, उधर तो उन्होंने घर बनाए हुए बॉर्डर के ऊपर, एक साइड पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ ये कैसे होगा ये सब? बॉर्डर मैनेजमेंट सब पॉइंट्स पे नहीं होगी। जहां पे मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है कि यहां से लोग भागकर जाकर वहां छुप जाते हैं, जैसे कि मुल्ला फजलुल्लाह गए हैं, और वहां से लोग आके यहां आ जाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान कुछ लोगों को बचा के रख रहा हो, अच्छे तालिबान को, और अफगानिस्तान कुछ अच्छे तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। इससे बात नहीं बनेगी। मेरा ख्याल है कि तालिबान से गलती हुई है टाइमिंग की, ये उनके लिए वक्त नहीं था। वो बार बार मार के हमले कर करके मजबूर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी रियासत जो है रद्द अमल का शिकार हो, और पाकिस्तानी रियासत मेरे ख्याल में रद्द अमल में आ गई है। मुझे लगता है कि ये जो शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई हुई है, ये अपने तौर पर इसका एक साइकिल क्रिएट होगा, और ये भी बात है इसके खिलाफ तालिबान रद्द अमल का इजहार करे। लेकिन हुकूमत मुझे नजर नहीं आ रही इम्तियाज साहब। नवाज शरीफ साहब को ये काम करने चाहिए थे, फौरी तौर पर आगे कौम से खिताब करते, कौम को एतमाद में लेते। एक और काम हो गया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इत्तेफाक राय, बातचीत करो, खत्म हो गया। ऑपोजिशन एक साइड पे हो गई है। कल सेनेट में पीपल्स पार्टी ने जो तकरीर की, आवामी नेशनल पार्टी ने, MQM ने, उन्होंने कहा है कि इनसे ये बातचीत का वक्त खत्म हो गया, और वो मतलब ये है कि उन्होंने वो मैंडेट जो उन्होंने इख्तियार दिया था बातचीत का, वो उन्होंने वापस ले लिया है। और अब जो है, अब हुकूमत और नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट मीटिंग में कल जो बातचीत थी, उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, और उन्होंने कहा कि इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे। और जो बातचीत हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में और वजीर आज़म साहब में, वो भी उसमें समझता हूँ उसमें इत्तफाक राय है। अच्छा। अब लेकिन ये जो रद्द अमल है, ये लगता ही है कि वाकयात मजबूर कर रहे हैं, और तालिबान ने इन्हें मार के पाकिस्तानी रियासत पे हमले करके धक्के दे के कहा कि आओ, मजबूरी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन आप मुझसे पूछे क्यों कर रहे हैं? नहीं, नवाज शरीफ साहब अभी किसी पोजीशन में नहीं है कि वो फैसला ले सकें। उनको और ज्यादा जरूरी काम है कि शुजात अजीम साहब को दोबारा उन्होंने लगा दिया स्पेशल असिस्टेंट, जबकि ड्यूअल नेशनैलिटी भी है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए काम, बजाय इसके कि ये रियासत इस वक्त खतरे में, उसकी तरफ तवज्जो दें। मगर अयाज साहब, एक बयान आया है कारी शकील हकानी की तरफ से, जो इस वक्त तालिबान के पॉलिटिकल कमांडर हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हुकूमत सीज फायर नहीं करेगी, और पहले वो सीज फायर करें, फिर हम सीज ये तो फायर पुराना उनका मुतालबा है, ये कोई नहीं। इम्तियाज साहब को बात करना चाह रहे थे। इस अरसा में पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाइयां नहीं की थी, हुकूमत कार्रवाइयां नहीं कर रही थी, मुकदमात भी दर्ज हो रहे थे नामालूम लोगों के खिलाफ। ये सिंध हुकूमत ने पहल कदमी की, वो की। और अब आप देखें कि बिलावल की तकरीर और उसका मूड पिछले चंद दिनों से बिलावल और पीपल्स पार्टी पोजीशन ले रहे हैं कि इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन है, आप बात को सीधा करें। उन्होंने कहा कि आप इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा ना करें, ये हमारे दुश्मन है, ब्लड लस्ट तालिबान, ये उनकी राय है। मुझे लगता यह है कि हुकूमत तोह न करन, अगर इन्हें चॉइस दी जाती PMLN की हुकूमत को, ये किसी सूरत में कार्रवाई ना करते।
अच्छा, हाँ, और ये नहीं चाह रहे तो थे। तालिबान इनको कॉर्नर किया कार्रवाई करने के लिए। तालिबान जो है ना, वो असल में तालिबान लगता है कि उनकी कैलकुलेशन ये है कि उन्हें हुकूमत की बेअमली से और शिकस्त खुर्दगी से उन्हें हौसला मिला है, और मेरा ख्याल है उन्हें रीडिंग गलत की है। चलिए और इम्तियाज साहब, मुझे अब छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम जाएंगे अपने ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना की तरफ। उनके पास एक खसूसी रिपोर्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर क्या मामला तय पाए हैं, ये सब कुछ एक वक्फे के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। आमिर इलियास राना साहब जो इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे साथ हैं। आमिर इलियास राना साहब, आपके पास एक खसूसी रिपोर्ट है जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग हुई है, उसके जो बुनियादी पॉइंट्स हैं वो क्या निकले हैं? देखें, बेसिकली जो बुनियादी पॉइंट्स हैं वो रात हमने चला भी दिए, मीडिया पे आए भी हैं कि वो एक इंटरनल सिक्योरिटी का इदारा जो चौधरी निसार 7 माह से कह रहे हैं कि नेक्टा के अंडर बनाना चाहते हैं, जो जिसमें बेसिकली तमाम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, MI की, ISI की, IB की, स्पेशल ब्रांच, सूबे सब ऑन बोर्ड हों, ताकि फिर फैसला फौरी किया जाए। अब यहाँ फैसला होता है कि एक इत्ला आती है, 7 दिन तक वो सुबह में तकसीम होती रहती है, धमाका करने वाले धमाका करके चले जाते हैं और एक्शन के लिए उस वक्त सूबाई हुकूमतें उस पर ऑर्डर कर रही होती हैं। तो जो चौधरी निसार बार बार कह रहे थे कि इसके 3 लेवल होंगे और एक खुफिया होगा, तो बेसिकली वो खुफिया ये है जो ऑपरेशनल लेवल पे है। जो हमारी इतलात हैं, आर्मी और वजीर आजम एक डिसीजन ले चुके हुए हैं, और वो यही है कि अब जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, सर्दी कम होगी, जो मार्च के इब्तदाई हफ्ते होंगे, उसमें बराह रास्त ऑपरेशन, मेरा ख्याल ये है और इतला है कि वो पब्लिक में सामने आ जाएगा। हुकूमत, तमाम सियासी जमातें, आर्मी सब मिल के ये ऐलान कर चुके होंगे कि अब हालात वो आ गए हैं। अभी अयाज खान साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वजीर आजम कहाँ हैं। देखें, अगर बड़के मारने से काम चलता तो रहमान मलिक सब कुछ खत्म कर चुके होते अपने 5 साल में, और रोज ऐलानात करने से। मलिक साहब ने भी कुछ नहीं किया ना, अफसोस, वो भी बढ़के ही मारते रहे। नहीं कर रहे। तो मैं कह रहा हूं कि यही मैं कह रहा हूं आपसे कि जब अयादत करने वजीर आजम पहली दफा जाता है, ये पहले कभी नहीं गए, कहीं पे गए आपको नजर आए अयादत करने? वैसे तो शुहदा की जो यादगार है उस पर फूल भी चढ़ाए, सवात मालाकंड भी हुआ है, लेकिन ये जो जख्मियों के पास जाना है ना, ये एक मैसेज देता है। आर्मी चीफ की तो जाहिर है फोर्स है, उस पर हमले हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। वजीर आजम जो आज 1.5 घंटा रहे हैं ना CMH में, ये बहुत बड़ा एक क्लियर मैसेज है जो लोगों को बताया जा रहा है कि अब हालात वो नहीं रहे। जवाब के लिए आर्मी अगर सारी रात से वहां पे अपना एक्शन कर रही है, और पहले जब दिसंबर में वाकया हुआ चेक पोस्ट पे, तो 3 दिन आर्मी ने एक्शन लिया। तो अब ये सिचुएशन बेसिकली वहां जा रही है जहां पे लोगों का तकाजा भी है, और अब लोग 2 धमाकों के बाद ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऑपरेशन हो और हुकूमत कहां है। मैं आपको बताऊं, कल काबीना में एहसन इकबाल ने भी ये कहा, उनका कहना था कि मुझे पता है कि हम ऑपरेशन करने जाएंगे और फैसला क्लियर है, लेकिन लोगों में हमारे बारे में एक तासुर बन गया है, तजब्जुब का वो शिकार है कि हम लोग फैसला क्यों नहीं कर रहे। यानी ये कैबिनेट में भी डिस्कशन हुई, ख्वाजा आसिफ ने फिर इसके जवाब में तकरीर की कि अब हमें जवाब देना ही पड़ेगा और पब्लिक में रिस्पांस करना पड़ेगा, और अगले आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इनका निशाना होंगे, ख्वाजा आसिफ और परवेज रशीद का, क्योंकि उनके ख्याल में कि अगर लोगों में कोई ढारस तालिबान के लिए बंधवा रहा है तो वो इमरान खान है, चेयरमैन PTI। इसीलिए वो कल CMH का दौरा भी नहीं कर सके कि फौजियों में भी इस बारे में तजब्जुब है कि एक तरफ तो जो हमारी ठुकाई कर रहे हैं उनके साथ हमदर्दी के बोल इमरान खान बोल रहे हैं, फिर वो हमारे पास भी आना चाहते हैं, तो वो 2 अमली को पसंद नहीं कर रहे। कि क्लियर होना चाहिए लीडर को कि वो चाहता क्या है और कराना क्या चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इन्होंने बहुत सारी बातें मैं बता दी हैं, मगर देखें जी, परवेज रशीद तो पहले भी इमरान खान के ऊपर इसी बात के ऊपर तंकीद कर रहे थे। नहीं, उनका काम ही है, वो इंफॉर्मेशन ये बताइए कि 2 हमले हुए फौज के ऊपर, और ये आमादा हो गए कि जी हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। जाहिर है ये एक बैनुल अक़वामी मामला है, वहां से इनखला होना है ट्रूप्स का, ये कहीं जाके और इसकी जो कड़ियां हैं वो मिलती हैं ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन अफगानिस्तान। अच्छा इम्तियाज साहब, ये मतलब आमिर इलियास राना साहब ने तो बता दिया कि ये फाइनली उस तरफ जा रहे हैं, तो लेकिन ये कौम को बताने में क्या हर्ज है? मार्च तक क्यों डिले करना चाह रहे हैं कौम को अपना फैसला बताना, ताकि दहशतगर्द बाहर ना आ जाए? हुकूमत का बड़ा डिलेड, बहुत सुस्त रवि से हुकूमत इस तरफ जा रही है। हुकूमत को चाहिए था कि लोगों को एतमाद में लेती, बातचीत में क्या तजर्बा सामने आया वो लाए कि हमने कितनी कोशिश की संजीदगी के साथ, ये नहीं मान रहा है। जिनके साथ बातचीत हो चुकी है उन्हें सामने लाएं, और जो नहीं तैयार है उन्हें एक्सपोज करें, हुकूमत के सामने लाना चाहिए था। फिर अगली बात यह है कि ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, इन अ वे तो शुरू हो गया। आज हमने सुना राणा साहब को, पंजाब के वजीर जो है राणा सनाउल्लाह, हाँ, कि उन्होंने कहा कि इस पर सर्च ऑपरेशन रावलपिंडी में हो रहा है और उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है।
मतलब एक तरह से रद्द अमल जो हुकूमत में एक इनर्शिया था ना, एक जैसे बेहोश हुई है हुकूमत, उससे हुकूमत निकल आई है। और इसमें तालिबान ने बड़ा किरदार अदा किया है, झंझोड़ा है। मतलब हुकूमत खुद नहीं निकली, तालिबान ने निकाला है। दूसरी बात एक और था कि गालिबन अफवाज पाकिस्तान का फैसला ये था कि उन पर हमला होगा तो वो जवाब जरूर देंगे। इसका इजहार पहले भी हो चुका है। जी। अच्छा, अब जो मामला है ना, इससे एक साइकिल बनेगा। जो अब जो कार्रवाई हो रही है शुमाली वजीरिस्तान में, उसके खिलाफ वो रद्द अमल का इजहार करेंगे। हम फिर रियासत रद्द अमल का इजहार अब इसका नुकसान क्या होगा? और मेरा ख्याल ये है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसका एक नुकसान, मेरा ख्याल है लड़ाई शुरू। देखिए इसका नुकसान ये होगा कि इसमें सिविलियंस भी मारे जाएंगे। ये देखिए बात सुने, इस देखिए लड़ाई में सबसे ज्यादा तो बेचारे वल्नरेबल जो है, जो लोग मारे जा सकते हैं, वो गैर रहते शहरी बेचारे, जैसे आरे बाजार में बहुत से लोग मारे गए जी। और जिस तरह आप देखते हैं कि कराची में अभी पोलियो वर्कर्स मारे गए। जब ये सड़कों पे चलाएंगे बम और मार्केट्स में चलाएंगे या अस्पतालों में चलाएंगे या स्कूलों में चलाएंगे, जैसे आपने तबलीगी जमात के मरकज में देख लिया, आम लोग मारे गए जिनका कोई ताल्लुक नहीं कॉम्बैट से। मगर वो तालिबान ने कहा उसको क्लेम नहीं की उस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, है तो दहशतगर्दी ना। बात हो रही है कि दहशतगर्दी, देखिए ना, किसी ने दहशतगर्दी की है, जिसने भी की है। अब वो जिसने, हम तो कह रहे हैं कि अभी तशद्दुद का इस्तेमाल ना हो। तालिबान भी आए, अपना आके एजेंडा रखें, कानूनी तरीके से आए, वायलेंस के बगैर अपने दलील दें, अवाम के सामने पेश हों, राय दें अपनी। उनके बहुत से हामी है पाकिस्तान में, उनके साथ खड़े हो जाएंगे। वो अवाम के सामने अपना जो भी जिस तरह का निजाम लाना चाहते हैं। लेकिन जिस रियासत जो है, जिसका एक आइन है, कानून है, वो जाहिर है कि वो इस तरह खामोश तमाशाई बन के नहीं बैठ सकती। वो तो देखें, एक खामोश तमाशाई जब बनती है रियासत, तो एक मैसेज जाता है कि रियासत मफलूज हो गई। मैं आपको मैं 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो हुकूमत को सियासी कुव्वतों को एतमाद में लेना चाहिए, पार्लियामेंट को लेना चाहिए। एपीसी की जरूरत नहीं है। एपीसी तो अब ये तो ढोंग है, इसको खत्म कर देना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर आप लोग ये बातें डिस्कस करें। दूसरा ये है कि अगर हुकूमत को अपना रवैया और नजरिया बदलना चाहिए, जो उनका बयानिया है, जो कहते हैं हमारी तो जागी नहीं है, आपके लोग मर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत कहे कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने लोगों का जानो माल और मासूम शहरियों की जिंदगी की हिफाजत करनी है, इन पोलियो वर्कर्स की हिफाजत करनी है, दानिशवरों की करनी है, सहाफियों की करनी है, शहरियों की करनी है हिफाजत। हुकूमत देखिए इस तरह से नहीं हो सकेगी। फिर एक बड़ी अच्छी बात आई इस रिपोर्ट में, वो कहते हैं कि एक नैरेटिव जो है ना, एक जहाज का नैरेटिव बन गया है। अमेरिका बड़ा जालिम है, हाँ अमेरिका जालिम है, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई, हाँ हक है, बरहक है। तो लिहाजा आप ये ख्याल किए बगैर कि लड़ाई कैसे लड़नी है, पाकिस्तान का मफाद क्या है क्या नहीं है, वो आप शामिल हो जाएं। और फिर जो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उनसे आंखें बंद कर लें। आप कैसे इस शरपसंदी से, या ये जो जराइम पेशा लोग हैं, अमेरिका ने एक ज्यादती तो की, अमेरिका ने एक ज्यादती तो की, डॉक्टर शकील आफरीदी को इस्तेमाल करके ये पोलियो के मुहिम का बड़ा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं एक बात, उसको देखिए कर लिए कि हम इसमें जो कमीशन की रिपोर्ट आई है, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट में उसने लिखा है कि उस रिपोर्ट में ये आया है कि उसने जो मुहिम चलाई थी उसके जरिए तो आइडेंटिफिकेशन हुई नहीं उसकी, बिल्कुल ओसामा बिन लादेन की, पता है आपको? जी बिल्कुल। देखिए रिपोर्ट में लिखा हुआ वो बात ठीक है, लेकिन अच्छा, एक तासुर वो ठीक कह रहे हैं, जहां पे ओसामा बिन लादेन था, वो तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन की जो फैमिली थी उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, उनसे वो जो तासुर, देखिए जो तासुर बन जाता ना, मतलब वो तासुर ये बन गया कि डॉक्टर शकील आफरीदी की वजह से ही हुआ। कुछ इसके बारे में दूसरी बातें फैलाई गई कि जी आप नामर्द हो जाएंगे, आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी, यही बात। और आपको मालूम है कि पोलियो वर्कर इस तरह अगवा हुए हैं बहुत सारे, कई आपको मालूम है जितनी वैक्सीनेशन है उनके खिलाफ ये रद्दमल आता है, हुआ है। बेसिकली हालत की बात है। बेसिकली ये देखें, ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हैं जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमले से ये शुरू होता है। सबसे ज्यादा देखिए हम सब बात करते हैं, हम सब बात करते हैं कोलैटरल डैमेज की, मासूम लोगों के मरने की। ये जो शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान के लोग जो जरगमाल बनाए हुए लोगों को, उनका क्या? एक मैंने देखा बाबा रो रहा है और वो कह रहा है देखो मेरा बच्चे जो पोलियो का शिकार हुआ उसकी टांगे खत्म हो गई बच्चे की, और उसने कहा कि देखो इन लोगों ने मेरे बच्चे की हालत की है, ये जिम्मेदार है। और आपको पता है पेशावर के अंदर जो हॉस्टल्स हैं लड़कियों के, उसके अंदर वजीरिस्तान की लड़कियां बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर हैं
क्योंकि वो जा ही नहीं सकती स्कूलों में। अब तो ये पूरे मुल्क में देखें जिस तरह से ये दायरा बढ़ा रहे हैं पोलियो वर्कर्स पे हमले का, ये तो पूरे मुल्क में बंद हो जाएगी। मगर बिलावल भुट्टो ने एक सवाल के इम्तियाज साहब मुझे जरा इजाजत दीजिए, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। उसने कहा ये सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं, और आपको पता है उनका किसके तरफ इशारा है, वो ये कहते रहते हैं कि ये जो दहशतगर्द हमले हैं ये कोई साजिश है और ये मुल्क दुश्मन अनासर ये साजिश कर रहे हैं, और उनका इशारा और मुल्कों इजराइल, इंडिया, इन मुल्कों की तरफ होता है। तो वो कहते हैं कि अगर वो साजिश कर रहे हैं तो फिर वो उन्हीं तालिबान के साथ बातचीत करने पे क्यों आमादा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि बुनियादी बात यह है कि हमारे अपने घर में मसला है। हमारे बच्चे गुमराह हो गए हैं। मैं तो जो सुसाइड बॉम्बर है, मैं तो उसके लिए रोता हूँ कि उस बच्चे को, मासूम बच्चे को, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे को उसके जहन में डाल क्या दिया है। मैंने उनके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उन बच्चों को मैंने वो भी देखा है जहाँ पे उनकी इस्लाह हो रही है। मैंने उनके इंटरव्यूज किए हैं। आपने तो मैंने एक जगह देखा, एक साहब के यहाँ बच्चे 7 और 9 साल की उम्र के थे। तो ये भी तो रियासत की जिम्मेदारी है ना। नहीं, उन बच्चों को बचाना भी रियासत की जिम्मेदारी है। अल्लाह का गज़ब नहीं आएगा। मैं मासूम बच्चों को आएगा क्या? आ चुका है इस मुल्क पे। गलत राह पे लगाऊं, उसका नहीं आएगा। आ चुका। अब उनके बच्चों के हाथ में कलम हो, पेन हो, किताब हो, कंप्यूटर हो, साइंसदान बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करें। जिस मुल्क में एक पॉलिसी बनने में 7 माह लग जाए और वो ना बन सके, उस मुल्क में यही हुआ करता है। इम्तियाज साहब, मैं समझता हूं कि हुकूमत चाहिए कि वो जो है अमन की छड़ी पेश करे तालिबान को, कि आइए बातचीत करें, और ये तारीख है। हम आप अपनी कार्रवाई रोकते हैं, आप कार्रवाई रोकें, आए बैठे 10 दिन में मसला हल करें। इसमें मगर मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मगर नहीं करते सवाल है। आवाम के पास जाएं, देखिए हम तैयार हैं। ये नहीं मान रहे, जो नहीं मान रहे और लोगों को मार रहे हैं, तो रियासत का काम तो होगा, मुतालबा होगा, हुकूमत दबाव में आएगी, लोग कहेंगे भी आप हमारे लिए टैक्स क्यों लेते हैं, आप ये रियासत क्यों है, हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लोग ही कहेंगे। मगर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम इस मौजू के पर अपनी बात जारी रखेंगे। लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद फिर से हाजिर। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, जहां पर दोनों कश्मीर के दरमियान इस वक्त तजारत भी बंद है और बसेस का जो हमने एक शुरू किया था सिलसिला वो भी बंद है। इस वक्त हमें ज्वाइन करें श्रीनगर से कश्मीर मॉनिटर के एडिटर शमीम मिराज साहब। शमीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें श्रीनगर से ज्वाइन करने का। ये बताइए कि हेरोइन पाई गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जो एक ट्रक जा रहा था मकबूजा कश्मीर, उसके रद्दे अमल में आप लोगों ने हमारे ट्रक रोक लिए हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर्स वहां पे रोक लिए हैं, और उसके रद्दे अमल में हमने भी यहाँ पे कुछ ट्रक ड्राइवर्स रोक लिए हैं, 27 ट्रक ड्राइवर्स टू बी प्रिसाइज। तो क्या वाकई में हेरोइन पाई गई है? क्या तहकीकात क्या है और क्या वजह है कि इसके रद्दे अमल में सब कुछ बंद कर दिया गया दोनों हुकूमतों ने? देखिए, अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं पुलिस के ज़राए से या सरकारी ज़राए से, तो उनका कहना है कि परसों पाकिस्तान से, मुजफ्फराबाद से एक आने वाली गाड़ी में कोई 100 करोड़ से ऊपर तक का ब्राउन शुगर या हीरोइन जिसे आप कह रहे हैं वो बरामद किया गया। जो ही वो हुआ, उसके बाद जो ट्रक के ड्राइवर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा जो उनका लोकल कॉन्टैक्ट था जिसके लिए वो माल आ रहा था उस गाड़ी में, उसको हिरासत में ले लिया गया है। मेरी पूरे दिन बात होती रही है अपने सोर्सेज के साथ, उन्होंने कहा एज ऑफ नाउ FIR दर्ज हो चुका है, केस रजिस्टर हो चुका है। तो इस वक्त द ओनली सूरत हाल ये होगी कि उस ड्राइवर को रिहा करने की ये होगी कि अगर मसला अब डिप्लोमेटिक लेवल नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में पड़ जाए, क्योंकि केस रजिस्टर हो चुका है, तहकीकात जारी है। जैसा आपने पहले भी कहा, ट्रेड और बस सर्विस दोनों रुक चुके हैं, हमारे ड्राइवर आपके पास हैं, आपके ड्राइवर यहाँ हैं। तो एज ऑफ नाउ ट्रेड बिल्कुल रुक चुका है, और एटलीस्ट कल तक मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है कि ये ट्रेड या बस सर्विस रिज्यूम हो जाए, क्योंकि दोनों हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान को भी अभी तक जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उससे थोड़ा क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बताइए कि बातचीत दोनों अतराफ पे हुई कि दरमियान के भैया ट्रक छोड़ दें, बाकी लोगों को जाने दें, तो वो नाकाम क्यों हो गई है? जितना मेरा मानना है ये खाली ट्रक की बात नहीं थी। तो कल जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी कहा था कि हमारे ड्राइवर को छोड़ दीजिए। आपके साइड से जो लोग आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि ड्राइवर को छोड़ दीजिए, उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। तो उसके बाद मैंने ड्राइवर को यहाँ के जो अफसरान, ड्राइवर को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है,
वो हमने वही सुना है कि कल जो मीटिंग हुई थी यहाँ के अफसरान ने वो फिर कागजात मांगे हैं कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है नहीं, वो मीडिया में भी आज रिपोर्ट आ चुकी है, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। तो शायद उन्होंने ये मना कर दिया कि ट्रक जाएगा तो ड्राइवर के साथ जाएगा वरना नहीं जाएगा। वहां पर थोड़ी पोजिशनिंग हुई है, दोनों साइड से हार्डनिंग ऑफ स्टैंड हुआ है। यहाँ वाले अफसरान ने ये कह दिया कि पर्चा कट चुका है, तहकीकात जारी है, अभी पॉसिबल नहीं होगा कि हम ड्राइवर को जाने दें जब तक हम इस पूरे मामले की तहकीकात पूरी न कर लें कि ये माल आया कहां से कहां जा रहा था। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो लोकल कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए वो माल आ रहा था उस ट्रक में, उसको भी हिरासत में ले लिया तो गया है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसने मामला भेज दिया है यूनियन गवर्नमेंट के पास, दिल्ली को मामला भेज दिया है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप टॉप मोस्ट लेवल लें, मुझे नहीं लगता अभी कोई मामला वहां पर खास तूल पकड़ा हुआ है। लोकल लेवल पे या लो लेवल पे बातचीत हो रही है। कल भी मीटिंग हुई थी डिविजनल कमिश्नर की आपके अफसरान के साथ, बट आज शाम को ये माना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मली अब होम मिनिस्ट्री और MEA को इन्वॉल्व कर दिया है, ये बोलते हुए कि ट्रेड बंद हो चुका है। बट नई दिल्ली में ये प्रॉब्लम थी, वहां अरविंद केजरीवाल का बड़ा धरना चल रहा था होम मिनिस्टर के खिलाफ, वो अभी भी थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कल दिन में ही कोई इस पे आमदरफ्त हो पाएगी। अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दें मुझे कि कश्मीरियों को अगर तिजारत बंद हो गई और आना जाना बंद हो गया, इस पे क्या रद्द-ए-अमल होगा श्रीनगर में और आपकी साइड के कश्मीर में? देखिए, जब ट्रेड स्टार्ट हुआ कुछ साल पहले तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी, बट ये ट्रेड बिल्कुल इवॉल्व नहीं हो पाया है। बैंकिंग नहीं है, पर्सन टू पर्सन बार्टर ट्रेड है। आप मुझे केले भेजिए, मैं आपको नमक भेजूंगा, आप नमक भेजिए, मैं चीनी भेजूंगा। तो जिस हिसाब से अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, ये कभी वो ट्रेड बन ही नहीं पाया। तो यहाँ हर किसी में दुख तो है कि ये ट्रेड और बस सर्विस बंद हो गई, बट इसका अगर आप कोई कॉमन मैक्सिमम इंपैक्ट बोले, वो नहीं है, क्योंकि अभी ये ट्रेड है नहीं। इट्स ओनली अ बार्टर सिस्टम, नथिंग मोर देन दैट। तो अभी इसको ट्रेड कहना भी मुझे लगता है शायद टेक्निकली ठीक नहीं होगा। तो लोकल लेवल पर उतना कोई ज्यादा हमें विंटर का महीना है, बर्फ पड़ी है, हमारे पास बाकी परेशानियां बहुत हैं, ना कि LOC ट्रेड पे इस वक्त रोने में की। मगर लोगों के आने जाने पे तो फर्क पड़ेगा ना शमीम साहब, जो आमदोरफ्त है, डिवाइडेड फैमिलीज हैं दोनों साइडों पे। मैं आपसे वही कह रहा हूं, बिल्कुल दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, कहां पे क्या हुआ, किसने क्या किया, उसका बड़ा दुख है। बट अगर आप किसी मास इंपैक्ट की बात बोलें, अभी तक ऐसा कोई है नहीं। अभी सिर्फ 2 दिन हुए। आज हमारे पास उड़ी से तस्वीरें आई, जो आपके ड्राइवर थे वो उस कंपाउंड में वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो जाहिर है दोनों साइड के ड्राइवर्स का ठीक ठाक ख्याल रखा जा रहा है, बट अभी तक कोई यहाँ पे शमीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का श्रीनगर से। ड्राइवर इनके भी बड़े सुखी हैं यहाँ, वो भी बड़े अच्छे माहौल में उनको रखा गया। मगर याद साहब ये पहली दफा नहीं पकड़ी गई, खेल रहे होंगे, ये वॉलीबॉल खेल 10 करोड़ की पहले भी पकड़ी गई थी कोकेन, मगर तब कोई मामला नहीं हुआ था क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर से था, अपना जो ट्रक ड्राइवर था, इसलिए ये मामला डिप्लोमेटिक नहीं बना था। देखिए, टिपिकल ऑफ इंडिया पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। एक ट्रक पकड़ा गया है, आप पकड़ ले, तफ्तीश करें, 50 और रोक लिए। अब बाकी आप इधर से भी रोक के बैठे हुए, उधर से भी रोक के बैठे हुए। दूसरी बात यहाँ से कह रहे हैं कि तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। जाहिर है वहां जिनके पास गया, उन्होंने जिनके लिए गया था उन्हें वहां पकड़ा हुआ है। जरा पूछे तो सही, यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा रिपोर्टर जो है मुजफ्फराबाद में, वो क्या कहता है? रब्ता हुआ उनसे हम बात करेंगे, मगर उनसे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी हमारे पास ब्रेक के लिए थोड़ा सा वक्त है, तो हम इसके ऊपर और बात कर सकते हैं। नहीं, इंडिया पाकिस्तान यही होता है ना कि वो किसी एक सफारतकार के साथ कोई ज्यादती हो जाती है एक मुल्क में, उसके बाद पता चलता है जी दूसरे मुल्क में उसकी जबरदस्ती ठुकाई कर दी। ये पता कैसे खुली है? एक राज है ये, तिजारत कैसे खुली और लोगों ने आना जाना कैसे शुरू? ये तो मुशर्रफ साहब ने, आपको याद है 2004 में हम सहाफियों का 17 सहाफियों का वफद लेके श्रीनगर गए, जम्मू गए, वहां से हम यहाँ लाए सहाफियों को इधर, और वहां पे हमने सवाल किया कि कश्मीर में आने जाने के लिए दोनों तरफ के क्या कागज हो। आप दिलचस्प बात देखें कि कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों तक सबने कहा कि जी कोई पासपोर्ट नहीं, हमारा तो वही जो कश्मीरियों का शनाख्ती कार्ड हो काफी है। इस पर इत्तेफाक हो गया। जो हमने दिल्ली में पहुंचे, हमने कॉन्फ्रेंस की इस मामले पे, तो मुझे नटवर सिंह ने पूछा, बार बार चिट्ठी भिजवाई कि इस पर बात करो। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ, रस्तोग्रा और हमारे जो थे बैक चैनल पे वो मर गए, बड़े सीनियर थे डिप्लोमेट, उनके दरमियान ये बैठकर बात हुई और उन्होंने इसी जो तजवीज को हमारे पे इत्तफाक कर लिया। वो फिर यहाँ नोट्स वापस आए, तो जिसे हमारे उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे, और वो वहाँ का जो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं मान रहा। लेकिन हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद ये ऐलान हो गया, और पहले
मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के दरमियान बात शुरू हुई, फिर और 5 जगह से खुल गई। और वो याद होगा आपको और आप बताएं हम पे कितना अटैक हो रहा था, बड़ी तनकीद हो रही थी, लेकिन कश्मीरियों से जाके पूछें कि इससे रास्ते खुलने में क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। और लोग इम्तियाज 60 साहब, साल के बाद अप्रैल 2005 में ये पहली दफा ये खुला था रास्ता, और उस वक्त मैं वहां पे मौजूद थी उधर चिकोटी पे, और मैंने देखा था कि किस तरह 2 भाई थे। आप ऐसी छोटी कहते रहते हैं। 30 साल पे वो मिले नहीं थे। भी मौजूद थी, देखे सब सुने तो सही, 30 साल तक वो नहीं मिले थे, एक दूसरे को सिर्फ देख पाते थे। और फिर जब उन्होंने खोला तो सबसे पहले उन्होंने सब आर्मी को हटाया और इकट्ठे भाग के गए। तो वो आप देखे ना, वो जो बुजुर्ग शहरियों के लिए वीजा के बगैर वो जाने हुआ था, वो भी रोक दिया गया था। इंडिया ने सबसे पहले रोका उसको। है, वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं आसिफ रजा मीर साहब, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आजाद कश्मीर में। आसिफ साहब, ये बताइए कि जो 114 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है मकबूजा कश्मीर में, और हमारा वहां पे एक ड्राइवर फंसा हुआ है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने यहाँ पे तफ्तीश की है कि किसने यहाँ से हेरोइन भेजी थी? मैडम, इसमें गुजारिश ये है कि कुछ इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं जिनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। 2008 में जब ये ट्रेड का अमल स्टार्ट हुआ था मुशर्रफ दौर में, तो उसके बाद एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। मुख्तसर सा बताइएगा आसिफ साहब, बहुत कम वक्त है, मुख्तसर सा बताइएगा। ओके सॉरी, गुजारिश ये है कि ये जहाँ पे स्कैनिंग की जाती है, आजाद कश्मीर के जो हुकाम है उनका ये कहना है कि स्कैन करके भेजा गया था। दूसरी जानब जहाँ पे चेक किया जाता है, माल अनलोड किया जाता है, वहाँ पे ड्राइवर्स को और बाकी लोगों को उससे दूर रखा जाता है। तो इस बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा कि क्या वहाँ पे शामिल की गई। इससे पहले भी इल्जाम आयद किया गया था, जबकि हमारी साइड से कहा जाता है कि ये तजारत जारी रहनी चाहिए। नहीं, मगर हमारी साइड से तफ्तीश हो रही है कि नहीं? शुक्रिया मुनीज़े, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इस पर मेरी बात सुने। मेरी इत्तलात है कि ये स्मगलिंग कश्मीर के बॉर्डर पे भी इंतहाई मुश्किल तरीन, जब टेंशन के हालात रहे हैं, फौजें भी रही हैं तभी होती रही। नहीं, ये तो होती रहती है स्मगलिंग। तो अब 2005 से पहले भी मेरी थियरी सुने। हाँ बिल्कुल, मेरी थियरी सुने। ये दोनों साइड पे हिस्सा पत्ती पे झगड़ा हो गया। ये बिल्कुल ठीक है। ये कुछ इसी तरह का सीन बना। एक तरफ भी साइड पैसे ले चुकी होगी, दूसरी साइड घुसने हो गई। इम्तियाज साहब, मामला इम्तियाज साहब, ये मसला हल हो जाएगा, ट्रेड भी खुल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ मशवरे करते रहेंगे या कोई फैसला भी करेंगे? उनसे कहीं शेयर बने। भाई, इमरान खान का बयान में तब्दीली आ गई, पहली बार उनके मुंह से सुना है बयान मुजम्मत का नाम लेकर। तो ठीक है ना, उनको इससे मोहब्बत की पीके थी। इमरान खान वो गए कल वहां पे, कौम के दर्द में वो घुल रहे हैं। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि जब फौज जाएगी ना, तो जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नौयत पाकिस्तान में है, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ का दौर वैसे ही जैसे भुट्टो साहब का पहले साल 1.5 साल में रहा। भुट्टो साहब ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन नवाज शरीफ भी काफी ताकतवर है। अगर वो चाहें तो डायरेक्शन दे सकते हैं, नहीं देंगे।